This conference will now be recorded. Okay. So guys, have you done this problem? I think the Roshan sir has forwarded you the material where this problem was there. So when you see this problem, there will be some confusion in your mind when you see this problem. The reason why there will be confusion because you can see certain symbols. You can see you can see certain symbols like one symbol is dark blue in color, then you can see light cement color symbol what is there, so probably that create confusion in your mind. So what are those symbols are all about? So purposefully I use the symbol. So question like this, if you reach to level 2 or level 3, you may see this kind of symbol. One thing I want to clear that in exam your screen will be white and black. So the symbols which are fixed, they will be in black in color. Okay, so because I did all this work in MS Excel. So in MS Excel, the symbols what I got, they all I got in blue color. So I could not able to turn themselves those symbols into black color. So pardon me for that part. So otherwise, the symbols what would be in the dark color means dark, that would be black color dark. That means those are fixed. And certain maybe if you reach to level 2 or level 3, you may see this cement color symbol. So don't get attracted with this symbol. It doesn't mean that it is being solved. It doesn't mean that you can easily understand what I mean. That okay, this is star. Okay, this is star. Okay, and this is star, and this is also star. Okay, so you know that in same row, two star cannot come. So is this is like as if somebody has he was doing something, and maybe some kid or something, and he or she could not able to complete. He or she just did something, and they gave that work to you to complete it. So you don't follow this symbol. Those symbols which are in cement color, you can simply ignore this symbol. Fine. So this is what I wanted to tell. So the reason of showing you this question and that symbol is to make that clarity in your mind that in case if you see this symbol, so please don't get confused with this. Okay. So this is not at all something which we need to bother about. Okay. So we'll try to solve then this question. So now I need to identify this cell. I need to identify this cell. So this cell means which symbol. Now this is 5 into 5 matrix. Yesterday we did 4 into 4 matrix. So in exam, maybe if you are lucky, probably if you are good with pseudo codes, probably if you gradually increase your levels while solving, you may reach level 3 or level 4, where you may get 5 into 5 or 6 into 6 matrix. So that is my intention. So let's try to solve this problem. So Sohail has gave the answer also. I believe Sohail has solved before. Sohail, or maybe Sohail is very intelligent to solve right now. Sohail and Lakshmikant both have given the answer for the question mark. So probably I one of the either Lakshmikant or Sohail, one of the person answers correct. That I can say till now. So Lakshmikant, okay, so you replied in private, so I can say your answer is correct, while Sohail, your answer is not correct. So please one more time, Sohail, if you try, then it would really great. Others also, because I don't want to reveal the answer, because I believe right now everyone has started solving by this time. So I don't want you to disclose that part. So one by one, we'll try to do that. So first, I'll focus on the cell where the maximum data is given. So if I see this cell, so if I see this cell, so I can find out what geometrical figure can come here. So what geometrical figure can come here? You can easily know that the square is gonna come because the rest remaining all symbols are present there. So once I saw that, then I'll see that cell where probably I can see the maximum data can be available.
So which cell can I focus where I can get the maximum data? Probably which cell can I focus? Should I try this cell? Can I try this cell? So in this cell, no, only three symbols are given. Total five symbols. One, two, three, four. Okay, four symbols are given. Okay, so the fifth one is my answer. So plus will not come, square will not come, triangle will not come, circle will not come. So here the star will come. Okay, so here the star will come. So okay, so we got the star. Now then which cell can I focus? Probably where the more information can be given to me. So gradually I need to figure out the next cell सर which I, हाँ hello, सर सर वो स्टार एक बार कैसे आया सर बता सकते हैं? वो ऊपर वाली रो को देख के आया स्टार। ये वाला बोल रहा है बेटा जो अभी मैंने डाला। हाँ हाँ हाँ, ये उसके हाँ ऊपर वाली जो रो में हाँ, स्टार है वो। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, मैं फिर से बताता हूँ बेटा ये कैसे आया स्टार। एक मिनट में इसको इरेज करके फिर से बताता हूँ। देख बेटा यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाँ राहुल, देख बेटा यहाँ पे ये सेल पे देख राहुल। अब इस सेल पे राहुल ना ये देख, ये ये कॉलम और ये रो देख राहुल, ये कॉलम और ये रो देख। तो अगर मैं ये कॉलम देखूं तो ये कॉलम में क्या क्या सिंबल आ रहा है राहुल? ये कॉलम में आ रहा है आपका ट्राइंगल आ रहा है राहुल। अच्छा, ये यहाँ तो मैंने भर दिया था ना, ये तो आपको ये सबको क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये स्क्वायर था राहुल। हाँ, तो अच्छा, तो मैं ये अब मैं इस कॉलम को देखता हूँ। तो इस कॉलम में क्या क्या है? इस कॉलम में ट्राइंगल है। अच्छा, ट्राइंगल है और स्क्वायर है। ठीक है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है और ट्राइंगल है और स्क्वायर है और प्लस साइन है। तो ट्राइंगल नहीं आएगा, ट्राइंगल नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा और प्लस साइन नहीं आएगा। तो ट्राइंगल नहीं आएगा तो दो चीज बच रहा है, स्टार और सर्किल। अच्छा हाँ, मैंने पुराना वाला ऊपर वाला जो सर्किल है ना वो गलती से देख लिया था। ठीक है, तो दो ऑप्शन बच रहा है मेरे पास, या तो सर्किल आ सकता है, यहाँ पे दो चीज आ सकते हैं, या तो यहाँ पे सर्किल आ सकता है या यहाँ पे स्टार आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, सर्किल आएगा कि स्टार आएगा? तो यहाँ पे दो चीज आ सकता है, या ट्राइंगल आ सकता है या यहाँ पे स्टार आएगा या सर्किल आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँ? मैं एक रैंडमली एज्यूम कर लेता हूँ, है ना? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो कंफ्यूजन है इस सेल पे। यहाँ पे मेरे पास दो कंफ्यूजन है, ये कौन सा सेल होगा? A4 होगा ना, A44 पे क्या आ सकता है? तो या तो स्टार आएगा या तो सर्किल आएगा। मैंने गलती से उसके ऊपर वाला सर्किल देख लिया था। तो क्या एज्यूम कर लूँ? बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पार्ट। चलो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि स्टार है, मान लो। मुझे नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ स्टार मानता हूँ तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूंगा। अगर मैं सही सोचा तो सब जगह सही आएगा, और अगर मैंने गलत सोच लिया होगा, मान लो मैंने गलत सोचा था कि इसको तो सर्किल होता, तो मैं कहीं ना कहीं फर्स्ट मैं अटक तो जरूर जाऊंगा करके। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद कौन सा सेल ले ले? इसके बाद ये सेल लेके इसके बाद ये लेंगे तो एक स्टार है और ट्राइंगल है और प्लस है। अच्छा, और ऊपर वाला लेके ये ले, अगर ये लेते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर है, ट्राइंगल है, स्टार है और प्लस है। तो स्क्वायर है, प्लस है, ट्राइंगल है और स्टार है। तो यहाँ पे क्या जगह, अगर यहाँ स्टार है तो यहाँ सर्किल आएगा। सर्कल आएगा सर। सर्कल आएगा, क्योंकि अगर मेरे को नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। अगर वहां पे स्टार है तो यहाँ सर्किल आएगा, अगर यहाँ पे सर्किल होता तो वहां स्टार आता करके, है ना? तो वो वाइस वर्सा होगा, है ना? ये चीज हम लोग याद रखेंगे कि अगर हमारा आंसर गलत आएगा तो हम सबसे पहले इसको इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, A44 और A14 को अपन इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, अब और अब यहाँ पे लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सर्किल स्क्वायर यहाँ रिपीट हो रहा है।
और कौन सा सेल है जहाँ पे अपने को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके। अच्छा यहाँ पे आप देख लो, ये तो 1 2 3 4 भर चुका है। ये वाला सेल देखो आप, है ना, ये वाला सेल में बच क्या रहा है, स्क्वायर बच रहा है ना। तो सर्किल आ गया, ट्राइंगल आ गया, स्टार आ गया, प्लस आ गया। तो अगर ये सही है तो ये स्क्वायर आएगा। अगर मैं एज्यूम जो किया हूँ सही है, मुझे नहीं पता मैंने एज्यूम किया है कि सही किया है कि गलत किया है, तो वो तो अपने को टाइम विथ टाइम विल गेट टू नो कि हमने सही बोल सोचा कि गलत सोचा। ठीक है, अब यहाँ पे लोग क्या, ये वाला सेल लूंगा तो यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन है, सर्किल स्क्वायर और स्टार, 1 2 3 ही इंफॉर्मेशन है। और कौन सा सेल लें, यहाँ पे और कौन सा, ये सेल लेके, ये नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ पे कौन सा सेल अपन लें और टू स्टार्ट वर्किंग। सर अब हम लोग क्वेश्चन मार्क में रेक्टेंगल ले सकते हैं ना? क्वेश्चन मार्क में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन मार्क में क्या क्या आ सकता है। रेक्टेंगल की वही जगह क्वेश्चन बचा हुआ। क्वेश्चन अगर आप रेक्टेंगल का देखोगे तो रेक्टेंगल में पहला कॉलम में आपका रेक्टेंगल आ गया, तीसरे कॉलम में आ गया, चौथे कॉलम में, पांचवा कॉलम में आ गया। तो अब रेक्टेंगल आप पहला रो भी देखोगे, पहले रो में रेक्टेंगल आ गया, दूसरे रो में आ गया, तीसरे रो में आ गया, चौथे रो में आ गया, पांचवें रो में नहीं आया। तो आखिरी में यही जगह बच रहा है रेक्टेंगल को आने के लिए। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने तो स्टार एज्यूम किया ना। अगर मैंने तो स्टार एज्यूम किया है, अगर मैं इसका पोजीशन इंटरचेंज करके देखूं तो विल दैट अफेक्ट द रेक्टेंगल पार्ट। अगर मैं इनका पोजीशन इंटरचेंज करके देखूं, अगर वहां पे मान लो कि यहाँ पे मेरे 2 एजम्पशन था ना, कि यहाँ पे मेरे पास 2 एजम्पशन था, कि यहाँ पे मेरे पास 2 एजम्पशन था कि यहाँ पे सर्किल भी आ सकता था। अगर यहाँ सर्किल आता, क्या वो स्क्वायर का पोजीशन इफेक्ट करेगा क्या। यहाँ पे सर्किल आता तब भी नहीं आता, यहाँ पे सर्किल आता तो यहाँ स्टार आता, यहाँ स्टार आता तो स्क्वायर तो यहीं आता, स्क्वायर यहाँ आता तो यहाँ स्क्वायर तो यहीं आएगा। तो आपका आंसर तो डेफिनेटली स्क्वायर है। योर आंसर इज डेफिनेटली स्क्वायर। अब मतलब अब उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर अगर कोई और अगर आप कंप्लीट करना है तो यू कैन कंप्लीट द सुडोकू, अदरवाइज यू गॉट द आंसर स्क्वायर, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी हम बोलते हैं उसको। सर उसमें वो नहीं हो सकता, ट्रायंगल वगैरह नहीं हो सकता इसमें? कहाँ पे बेटा, ये बोल रहा है स्क्वायर की A44 में जगह, बोल रहा है। स्क्वायर की जगह। यहाँ ये वाले जहाँ पे क्वेश्चन मार्क बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क हाँ बोल रहा है हाँ, कि ये बोल रहा है। ये क्वेश्चन हाँ मार्क मैंने वाला है। क्वेश्चन मार्क में देखना, देख ये बात समझना कि तू अभी अगर अगर तू स्क्वायर पे फोकस करे तो पहले कॉलम में स्क्वायर यहाँ आया है, तीसरे कॉलम में स्क्वायर यहाँ आया है, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ पे अगर कॉलम बाय कॉलम आप देखोगे तो हर कॉलम में स्क्वायर आ गया है एक्सेप्ट दूसरा कॉलम। रो वाइज देखोगे तो रो वाइज यहाँ स्क्वायर आ गया है, यहाँ स्क्वायर आ गया है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर आ गया है, यहाँ स्क्वायर आ गया है। एक ही जगह बच रहा है, एक ही सेल बच रहा है जो विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। यहाँ पे स्टार नहीं आया, फिर भी अगर हमको अच्छा डाउट ठीक है है। तो हाँ नहीं नहीं, अगर फिर डाउट नहीं। ठीक है, तो समझ गया बस मैं। एक ही सेल बच रहा है जहाँ पे। ठीक है सर, समझ गया। तो इंस्टेड ऑफ कि हम पूरा मैट्रिक्स सॉल्व करें, तो अगर जब हम श्योर है तो फिर मैट्रिक्स सॉल्व करने की हमको जरूरत ही नहीं है। जब हम श्योर नहीं होंगे तभी हम मैट्रिक्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सॉल्व करो आप। अच्छा, विच स्टार आंसर इज कमिंग करेक्ट एंड सुडोकू कंप्लीटिंग। ओके, सो काजल बोल रही है कि स्टार से सुडोकू पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, तो अपने को कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो वही मतलब एक तो वो बात है, दूसरा बात है कि हमने वो चीज भी कंफर्म कर लिया कि चाहे हम स्टार ले या सर्किल ले, हमारा आंसर पे तो असर नहीं पड़ता। मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट क्वेश्चन मार्क में तो अपना अपना स्क्वायर ही आएगा करके। तो फिर हम लोग यहाँ टेंशन नहीं लेना है। इवन देन इट विल रियली ग्रेट अगर आप अभी के टाइम पे उसको सॉल्व कर लो,
भले मेन एग्जाम में मत करना। तो यहाँ तो पूरा सर्टिनिटी है आंसर का। तो नायिका बोल रही है कि सीमेंटेड वाला कलर को ब्लैंक स्पेस ही मानना। हाँ हाँ नायिका, बस वो आपको ब्लैंक स्पेस ही मानना है। मैंने जानबूझ के ना जस्ट पेस्टेड दैट वैल्यूज वहां पे, जस्ट टू टेल यू कि अगर होता है ना कि मतलब द फर्स्ट टाइम व्हेन आई आल्सो सॉ आई गॉट कंफ्यूज, लेकिन वो दो दो स्टार देखा ना, देन आई गॉट कॉन्फिडेंस, देन व्हेन आई कंप्लीटेड द सुडोकू, when I was doing, so then once I get the complete Sudoku with no problem, so I understood that is just a bluff. So that is not something I should bother about. तो मैंने सोचा कि when I teach, I'll make sure that I'll show you the same thing. नहीं तो एग्जाम में, मेन एग्जाम में अगर यही चीज अचानक से दिख जाए ना, तो मतलब हम लोग नर्वस हो जाएंगे करके। वेरी गुड। सही है, प्लस आएगा इसका आंसर। हम्म किसी को डाउट है प्लस में? एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? वेरी गुड आदित्य, अर्शद, यश, एवरीवन, निशा, एवरीवन वेरी गुड। आशिति, लक्ष्मीकांत, राहुल, अभिषेक, लक्ष्य, जतिन, दीपांशु, प्रशांत, भूपिंदर, एवरीवन आंसर प्लस है करके। आपने जो आंसर दिया है सही है। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं आदित्य, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जैसे अभी की somebody help me while solving, थोड़ा अगर वैसा करके अगर आप वो चीज ऑब्जर्व कर लो तो बहुत फास्ट हो जाएगा करके आपकी सॉल्विंग करने की एबिलिटी। नहीं तो एज सच कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है बेटा, मुझे तो नहीं पता, मुझे लगता भी नहीं ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक होता है। बस वही अगर आप विजुअलाइज कर लो कि हाँ ये यहाँ यहाँ आ गया है, तो अच्छा ये यहाँ आएगा करके, दैट वे मतलब आप तो फास्ट कर सकते हो उसको वन बाय वन करने की बजाय। नहीं तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक कोई मतलब नो वन नोज, मतलब वो आदमी जो जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं दे कैन फिगर आउट कि हाँ यहाँ ये ऐसा हो सकता है। आप विजुअलाइज जितना जल्दी कर लोगे उतना अच्छा हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करने बैठ जाओगे तो मैं सॉल्व करने देख मैं आई स्टार्टेड सॉल्विंग, मैं सोचा पूरा सूट को सॉल्व करता हूँ, तो ग्रेजुअली वहां पे आप टाइम ज्यादा लोगे। अगर आप सॉल्व कम करोगे देखोगे ज्यादा तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज क्लिक कर जाएगा आपके दिमाग में। हाँ निखिल क्या चीज बोल रहा है? मे बी नकीन टाइप अगर डायगोनल कंडीशनल होता तो निखिल डायगोनल कंडीशनल नहीं होता है बेटा, रो और कॉलम वाला ही रहेगा। डायगोनल कंडीशन अगर देगा तो क्वेश्चन भी उस हिसाब से बनेगा करके, वैसा भी रहेगा। तो आई नेवर सॉ डायगोनल काइंड ऑफ कंडीशन, तो प्रोबब्ली आई हैव नॉट सीन। अगर ऐसा अगर एक सुडोकू होता है, एक टाकोडो भी होता है, so एक लेवल बढ़ जाएगा तो दे मे बी सच काइंड ऑफ सिनेरियो, बट
मैंने जितने पेपर सॉल्व किए मैंने तो कहीं डायगोनल वाला ऐसा सिनेरियो नहीं देखा है। ये तो मैं आपको वाउच बोल सकता हूँ। हाँ, तो ये समझ में आ गया ना आपको? तो ये सॉल्व करें। अंकुश, आपका आंसर गलत है अंकुश। अगर आप पुराना आंसर बोल रहे हो तो आई एम नॉट श्योर। रजनीकांत, आपका आंसर सही है। उस सेल पे फोकस करो जहाँ पे मैक्सिमम डेटा अवेलेबल है। उस सेल पे फोकस कीजिए आप लोग जहाँ पे आपको मैक्सिमम डेटा आपको दिख रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3, 3 है। यहाँ पे अगर मैं देखो तो स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, स्टार हो गया, प्लस आएगा। उस वहाँ पे फोकस कीजिए जहाँ पे मैक्सिमम डेटा अवेलेबल है। किसी को डाउट है इसमें? एनीवन हैव एनी डाउट? तारा, अभिषेक बोल रहा है तारा। ठीक है, आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। ये सब थोड़ा आगे लेवल पे आएगा। जो कल हमने 4x4 किया था वही आएगा आपके लेवल 1 लेवल 2 में। प्राइमरली वही आएगा आपके लेवल 1 लेवल 2 में उतना। उसके बाद लेवल 3 लेवल 4 में इस टाइप का भले आ गया 4x4, 5x5 या 6x6।
वेरी गुड अंशी, वेरी गुड लक्ष्य, वेरी गुड आदित्य. मेगा, everyone, very good. क्लियर है? किसी को डाउट है? नहीं बेटा, इसका आंसर ट्राइंगल होगा. गिरीश, अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ रहा है बेटा तो आप गलत कर रहे हो. कभी भी एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकता. एक ही सॉल्यूशन होगा गिरीश हमेशा इसका. आयुष, ट्राइंगल होगा इसका आंसर. उसके गौरव, जो आप बोल रहे हो वो पॉसिबल है. मैंने एक दो क्वेश्चन में देखा है. जो जो अभी पहला क्वेश्चन जो किया था उसमें मैंने देखा था कि मैंने 2 बार बनाए. दोनों बार में आंसर सही आ रहा था. हर जगह अलग अलग आया था लेकिन सीक्वेंस मेरा अलग था. लेकिन आंसर वही आएगा. मतलब आंसर तो मेरा वही आया था. वो जो सेल था दैट वाज द सेम ओनली. प्लस अगर आप बोलोगे तो प्लस करके ट्राई कर लेते हैं. अगर आप बोलो तो उसको डिलीट करके प्लस करके ट्राई कर लेते हैं अगर आप बोलो तो. अगर अगर वो प्लस सही है तो पूरा हर जगह अगर आपको लग रहा है ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं. आप मेरी हेल्प करना मेरे को. एक बार ट्राई करते हैं इसको. इसको डिलीट इरेज कर दो. ठीक है. तो कौन सा करना? तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये प्लस है. मैं ये मान रहा हूँ ये प्लस है. प्लस करके सॉल्व करते हैं. अगर सब सही आ गया तो मतलब इसके 2 आंसर पॉसिबल थे. हाँ आदित्य, हाँ आई होप सो. है 6x6 का मैंने रखा है. अब वो नेक्स्ट है कि नहीं वो मेरे को याद नहीं है. हाँ, आदित्य बहुत फास्ट सॉल्व करता है. ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं इसको. अच्छा, ये सेल में देखते हैं. ये सेल में क्या आ सकता है? यहाँ पे कैसा ट्राइंगल आ रहा है? एक मिनट. इरेज नहीं किया क्या? इरेज कर, पूरा इरेज कर. हाँ ठीक है. हम्म,
यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ट्राइंगल नहीं आएगा, सर्किल आ सकता है, प्लस नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। क्या क्या सिंबल आ गया, 1 2 3 4, तो यहाँ सर्किल आएगा, तो यहाँ सर्किल आ गया। यहाँ पे सर्किल आएगा तो उसके नीचे क्या क्या आ सकता है, अगर मैं नीचे की बात करूँ तो स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, स्टार नहीं आएगा, ट्राइंगल आ सकता है, ट्राइंगल आ सकता है, प्लस नहीं आएगा तो ट्राइंगल आ सकता है, तो यहाँ ट्राइंगल आएगा। ठीक है, यहाँ अगर ट्राइंगल आ गया, यहाँ पे अगर ट्राइंगल आ गया तो नीचे क्या आएगा, स्टार आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा स्टार। ठीक है, अगर यहाँ स्टार आ गया तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे फिर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आपका स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे आपका सर्किल आएगा। यहाँ पे अगर आपका सर्किल आ गया, हाँ ये सेल को फोकस करता हूँ। अच्छा ये सेल क्या, एक ही तो बचा है, फोकस क्या करना। तो स्क्वायर नहीं आएगा, ट्राइंगल नहीं आएगा, अच्छा स्टार आएगा ना, स्टार ही नहीं दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ स्टार आ गया। अच्छा यहाँ अगर स्टार आ गया तो यहाँ स्टार आ गया, फिर कौन सा सेल को फोकस करूँ, अगर इसको फोकस करूँ तो इसको फोकस करता हूँ। हाँ, अगर मैं इसको फोकस किया तो सर्किल आना चाहिए। अच्छा सर्किल आया हुआ है, स्क्वायर आया हुआ है, 1 2 3, ये 3 4, यहाँ क्या आएगा, ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं आएगा, स्टार नहीं आएगा, सर्किल नहीं आएगा, प्लस साइन आएगा, यहाँ प्लस साइन आ गया। यहाँ अगर प्लस साइन आ गया तो यहाँ पे सर्किल आ जाएगा, यहाँ पे सर्किल आ गया, यहाँ पे प्लस साइन सर्किल, नहीं आ सकता सर, प्लस साइन उसके नीचे भी है। अरे अरे सॉरी सर, ध्यान नहीं दिया मैं, एक मिनट, तो यहाँ पे पर तो नहीं बनेगा, प्लस वहां पर कोई भी सिंबल नहीं आएगा, उस जगह पे सारा कोई भी सिंबल नहीं आएगा नहीं बन रहा है ना, तो सर, वहां इसलिए कोई वो, भी symbol नहीं है। तो इसलिए ये प्लस नहीं हो सकता करके। है ना, समझ में आ गया ना, मतलब अगर हम लोग कहीं भी कुछ भी गलत वेरिएबल लेंगे ना, तो अपने आप हमको समझ में आ जाएगा कि भैया हाँ कहीं तो गलत हो रहा है करके। सौरभ बोल रहा है सर्किल की जगह प्लस करो 4th रो में, सर्किल की जगह, सर्किल की जगह 4th रो में। अच्छा ठीक है, सौरभ बोल रहे, चलो वो भी करके देख लेते हैं। मैंने कुछ गलत किया हो करते थे, तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ। अगर यहाँ प्लस करूंगा तो बेटा फिर सर्किल यहाँ आएगा ना, फिर ये और ये सर्किल हो जाएगा। फिर आप बोलोगे, अगर आप बोलो यहाँ पे मैं सर्किल डालूं, नहीं यार फिर पॉसिबल ही नहीं हो रहा ना। सर हाँ बोलो। सर जैसे जो उसमें पहले से दिया हुआ है, किसी किसी जैसे किसी किसी ब्लॉक में सर वो फिल कर रहे हैं, तो रो और कॉलम में सेम मतलब वो आ रहे हैं सर। कभी कभी ऐसा होता है कि रो में भी सर्कल है और कॉलम में भी सर्कल है सर, पहले से दिया होता है सर। नहीं बेटा वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अब्दुल, वो मतलब वो सुडोकू का लॉ ही नहीं होगा बेटा। मतलब एक रो और एक कॉलम में सिर्फ एक ही सिंबल होना चाहिए।
सब मेरे ख्याल से पिछले वाले क्वेश्चन में था ऐसा। नहीं, देख लेते हैं ना, आप बताओ कहाँ पे। आ, अगर वो सर ब्लैक सर कलर में वो कभी नहीं हो सकता। हाँ, जैसे जहाँ पे आपने जैसे फोर्थ रो में जहाँ ट्राइंगल है आपने बनाया है, फोर्थ रो में सर मैंने वहाँ, ट्रायंगल बनाया। हाँ हाँ। हाँ तो देखिए सर उसी रो में सर उसी रो में सर देखिए सर्कल है, और उसी कॉलम में भी सर्कल है देखिए, स्क्वायर भी है रो में और कॉलम में। हाँ, ये नीचे वाला बोल रहे हैं क्या? वो तो ऑप्शन है ना नहीं बेटा। नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं, ऑप्शन की बात नहीं कर हाँ रहा हूँ मैं। हाँ 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 सर हाँ हाँ। फोर्थ रो की बात कर रहा हूँ, फोर्थ कॉलम की बात कर रहा हूँ। सर वहां पे फोर्थ रो, सर्कल भी है। 1 2 3 4 सर्किल है। सर्किल, यहाँ एक ही सर्किल है ना, ये एक ही सर्किल है। हाँ तो सर उसी रो में भी तो, उस रो में भी तो सर्कल है, फोर्थ नीचे वाले रो में, फोर्थ रो में और फोर्थ कॉलम में भी तो सेम सेम है ना सर। फोर्थ कॉलम में एक सर्किल, फोर्थ कॉलम में सर्किल यहाँ है और फोर्थ रो में सर्किल यहाँ है। अच्छा, रो और कॉलम में अलग अलग हो सकते हैं, मतलब सेम सेम सिंबल हो सकते हैं रो और कॉलम में। रो और कॉलम देख अब्दुल, मैं तुझे फिर से बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि अब्दुल, अपने पास 5 सिंबल है अब्दुल, और अपने पास पांच पांच रो है और 5 कॉलम है। तो हर हर रो में एक सिंबल आना चाहिए और हर कॉलम में एक सिंबल आना चाहिए। हम लोग को ऐसे उसको अरेंज करना है। अगर गलती से अगर एक रो में 2 आ जा रहे हैं तो मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो जैसे अभी अच्छा मैंने अच्छा। वो प्लस एक, हाँ। तो अच्छा सर मुझे लग रहा था कि जो है मतलब रो में भी अलग सिंबल होना चाहिए, कॉलम में भी एकदम अलग होना चाहिए। नहीं 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 अब्दुल, समझ ना बेटा। कि अपने पास 5, अगर आप नीचे देखोगे अपने पास सिर्फ 5 सिंबल है। उन 5 सिंबल को हमको रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज करना है। ऐसा अरेंज करना है कि हर रो में एक आंची, हर कॉलम में एक आंची। तो यहाँ पे जब मैं बना रहा था गलती से मैंने यहाँ प्लस डाल दिया। तो फिर किसी ने मेरे को हाँ बोला कि सर ठीक है सर। ये तो प्लस पहले से ही है, तो आप वहां प्लस नहीं डाल सकते। हाँ ठीक है सर, समझ गए सर। हाँ, ये बनाओ। नहीं मतलब अच्छा है कि आप लोगों का कंफ्यूजन सब दूर हो जाए। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मतलब सब मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप ये बात मानो कि सबसे इजी एग्जाम आपका गेम बेस्ड एप्टीट्यूड एग्जाम ही होने वाला है ना। वो बहुत इजी होने वाला है, कोई डिफिकल्ट नहीं होने वाला। वही छोटा मोटा कंफ्यूजन रहेगा ना, तो मतलब अननेसेसरी वो नहीं होना चाहिए बस आपके दिमाग में। तो इसमें फिल कहाँ पे करना है? देखना बेटा क्वेश्चन मार्क का, ये है बेटा क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर। आदित्य आदित्य बहुत बहुत इंटेलिजेंट है यार, तू तो इतना फास्ट कैसे सॉल्व कर लेता है। वेरी गुड निशा। आदित्य लग रहा है च्यवनप्राश खाता है मुझे लगता है। वेरी गुड लक्ष्मीकांत तिवारी, वेरी गुड। बहुत अच्छा आदित्य। आदित्य, यू फ्रॉम विच प्लेस?
गुड गुड गुड। गाजियाबाद, मेरी एक दोस्त भी है गाजियाबाद की। कहाँ पे रहती है गाजियाबाद में पता नहीं। लास्ट टाइम जब तुम्हारे कॉलेज आए थे तो आई मेट है। वेरी गुड काजल। वेरी गुड। इंदिरापुरम तो नहीं पता, डीपीएस इंदिरापुरम ऐसा कुछ सुना है मैंने। पता नहीं वो वही डीपीएस। डीपीएस गाजियाबाद में वो भी है ना, आईएमटी गाजियाबाद। बहुत अच्छा कॉलेज है एमबीए का। अच्छा अच्छा। बहुत बहुत सुना है बचपन से, बहुत अच्छा कॉलेज है वो। बहुत मतलब स्कूल है, सॉरी कॉलेज बोल रहा हूँ। तो आदित्य तू वहीं से पढ़ा होगा फिर तो। अच्छा, बाल भवन पब्लिक स्कूल, सीबीएसई स्कूल होगा आई गेस। नाम से लग रहा है बहुत छोटे बच्चों का स्कूल है। अंशी गर्ग, आप एक बार देखो, आंसर आंसर गलत है वो। एक गेम में कितने क्वेश्चन होंगे? देख वैभव, कैसा होगा वैभव, जब जैसे वैभव, मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो कि आपने एग्जाम स्टार्ट किया, ठीक है, और आपको तो रैंडमली कोई 4 गेम आएंगे वैभव। उनमें से मतलब मान लो पहले आपका यही आ गया सुडोकू वाला, डिडक्टिव रीजनिंग इसको बोलते हैं। तो इसको जैसे ही आएगा ना बेटा, तो जैसे आप गेम खेलते हो ना, जैसे मोबाइल में आप गेम खेलते हो, लेवल बाय लेवल होता है गेम का। मैं आपको, जैसे हम दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाए, मान लो वैभव तेरे और मेरे के बीच में हो जाए कि आधे घंटे में देखते हैं कौन कहाँ तक पहुंच पाता है हम दोनों में से। तो आप, एक आदमी सॉल्व करेगा, अगर आपने सही सॉल्व कर दिया तो आप दूसरे लेवल पहुंच गए, फिर आपने सॉल्व किया आप तीसरे लेवल पहुंच गए।
मैं आंसर ही नहीं आ रहा है, मैं अटका हूँ। तो यहाँ पे मतलब अगर आप 4 से 5 मिनट मानते हैं, एक गेम में आपको 4 से 5 मिनट मिल रहा है, और एक जैसे आदित्य तो मतलब 20-25 सेकेंड में सॉल्व कर लिया, लेकिन एज अ नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट 1 मिनट तो लगाएगा ही सॉल्व करने में। तो अगर एज अ एवरेज बेसिस में अगर आप 1 मिनट लगा रहे हो एक क्वेश्चन में, तो आप मैक्सिमम 4 राउंड तक पहुंच रहे हो, तो बहुत अच्छा है। अगर आप 4 से भी आगे निकल गए तो मतलब कंप्यूटर को टेंशन हो जाएगा, उसको लगेगा भाई कोई इंसान एग्जाम नहीं दे रहा है, कोई कंप्यूटर ही बैठ के उसके बदले दे रहा है एग्जाम। तो तो उतना फास्ट भी मत करना, है ना। तो लेवल 4 और 5 तक पहुंचना बहुत अच्छा रहेगा करके। हाँ, तो लेवल मतलब तो बेटा ये समझो ना कि आपका अभी जो भी होगा सब कंप्यूटर करेगा, तो उनके लिए वो लेवल तो मायने नहीं रखेगा करके। आप ही सोचो ना, 5 मिनट में कितना लेवल क्रॉस कर पाओगे आप, और आप नर्वस भी तो रहोगे। यही क्वेश्चन मैं अभी नोटबुक में बैठ के बनाऊंगा तो मैं 2 मिनट, मतलब 2 मिनट तो बोल रहा हूँ, मतलब मैं आराम से इजीली बना लूंगा। वही क्वेश्चन मैं अगर सिस्टम पे बैठ के बना रहा हूँ तो थोड़ा होता है, डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, बिकॉज वी आर नॉट सो वेरी कंफर्टेबल विद कंप्यूटर्स। ये बात तो आप मान के चलो ना, सो दैट डिस्ट्रैक्शन विल ऑलवेज बी देयर विद अस। तो फ्रैंकली स्पीकिंग गौरव, लेवल की बात करूं तो मुझे लगता है कि लेवल तो मतलब दे वुड हैव, मतलब उनको क्या जा रहा है, मतलब एक बल्क ऑफ डेटा है, दे जस्ट नीड टू फीड दैट डेटा इनटू द सिस्टम, एंड ग्रेजुअली दैट विल इनहेंस दैट इट। वो तो रैंडमली ट्रायल एरर करके, यू अंडरस्टैंड रैंडमनेस, सो दे कैन मेक द लेवल टिल एनी लेवल। सो उनकी कंप्यूटर के लिए वो लेवल क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक गेम, जैसे वैभव आपने बोला एक गेम में कितने क्वेश्चन होंगे, तो एक बार में एक ही क्वेश्चन आएगा वैभव, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डेमो रहेगा। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेमो रहेगा। जैसे मुझे नहीं पता सुडोकू क्या होता है, जैसे अब्दुल को डाउट था सुडोकू के बारे में, तो एक डेमो रहेगा, तो आप क्लिक करके डेमो देख सकते हो। तो डेमो में आपने देखा होगा ना कंप्यूटर, आपने देखा आप कभी भी चेस खेलते हो, पहली बार चेस खोलोगे मोबाइल में, इंस्टॉल करोगे तो पहले कंप्यूटर खेल के आपको बताएगा, चेस चेस के इंस्ट्रक्शन बताएगा। वैसे यहाँ पे भी वैसे ही होगा। आप ये बस समझना, आप वीडियो गेम खेल रहे हो समवॉट, आप मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हो, इट वुड बी लाइक दैट। तो पहले आपको कंप्यूटर एक्सप्लेन कर देगा रूल ऑफ गेम, उसके बाद once you can watch the demo as many time as you want, उसके बाद then you can say okay I'm ready to play the game. काजल, आपका आवाज आ रहा है काजल, काजल शर्मा, आप अपने आप को म्यूट कर दे। ये समझ में आ गया सबको, तो इसका आंसर प्लस होगा। कोई डाउट है इसमें? दूसरा क्वेश्चन जो है, बता आदित्य, टाइमर चल रहा है, टिक 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 टिक।